Welcome to Aswani classes part 3, circle part 3. In this part, we are going to discuss cyclic quadrilateral and related results. So first of all, we will discuss what is cyclic quadrilateral. In a plane, a figure bounded by 4 lines is called a quadrilateral. प्लेन में अगर 4 साइड से घिरा हुआ एरिया है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल. नाउ सपोज देयर इज अ सर्कल ऑफ सेंटर O. Okay. Now let us take a quadrilateral. Let us take a quadrilateral A, B, C, D, whose all the 4 vertices lie on a circle. Then this quadrilateral is called a cyclic quadrilateral. Here A, B, C, D is a quadrilateral whose vertices are on a circle. So this type of quadrilateral is called cyclic quadrilateral. Or we can say any quadrilateral whose all the 4 vertices lie on a circle is called a cyclic quadrilateral. So here in this figure ABCD is a cyclic quadrilateral. Now let us see few results related to cyclic quadrilateral. Join BO and DO. Okay. Then this is the angle subtended by this arc, means BCD at the center of the circle. This is the angle subtended by arc BCD. Okay. And what is this? This is the angle subtended by arc BCD at any point on the remaining part of the circle. In the previous video we already discussed that angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the same arc at any point on the remaining part of the circle. So here angle BOD, this is the angle subtended by this arc at the center. This will be double the angle subtended by the same arc BCD at any other point on the circle, that is angle A. Okay. Again you come to this part DAB. This is also an arc. And what is this? This is angle subtended by this arc ABD at the center. This is also the angle subtended by this arc ABD. So what we write for this? This angle is BOD. So what will be this? This we write reflex. Okay, reflex of angle BOD. ये एंगल DOB है ना, so this is called reflex of angle DOB and is the angle subtended by this arc. This will be double the angle subtended by this arc at any point on the remaining part of the circle. ये इक्वल होगा एंगल C का. एडिंग दोनों को ऐड कर दीजिए तो if you add this side BOD and reflex of BOD, ये BOD और उसका रिफ्लेक्स दोनों को ऐड करने से 360 हो जाएगा. दिस प्लस दिस एंड दिस साइड 2 एंगल A प्लस 2 एंगल C, and from here you will get angle A plus angle C is equal to 180 degree. What are A and B? A and B
A and C are opposite angles of this cyclic quadrilateral. So you must remember, in a cyclic quadrilateral, if there is a cyclic quadrilateral, sum of opposite angle is always 180 डिग्री. आमने सामने के एंगल का सम 180 होगा. उसी तरह से आप दिखा सकते हैं B और D का सम भी 180 होगा. उसको कैसे? जैसे इसको मिलाए थे ना हम लोग, BD और OD को, इसमें AO और CO को मिला लेंगे. और इसी सेम तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं, ये भी हम लोग दिखा सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल D विल ऑल्सो बी 180 डिग्री. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का एंगल का सम 180 होता है. ठीक है, दिस इज ए रिजल्ट यू हैव टू रिमेंबर. इट्स कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू. If in any quadrilateral sum of opposite angles 180 degree, then it must be cyclic. कोई भी एक quadrilateral है, कैसे भी A B C D मान लीजिए quadrilateral है, इस तरह से है कि एंगल A प्लस एंगल C अगर 180 डिग्री है, ये ऑपोजिट एंगल का सम, कोई भी एक ऑपोजिट एंगल A प्लस एंगल C 180 दिया हुआ है, या एंगल B प्लस एंगल D 180. देखिए ये दोनों का सम अगर 180 है तो ये दोनों का सम अपने आप 180 होगा, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होता है. ये आपको मालूम होना चाहिए कि A B C D इज ए क्वाड्रिलेटरल, देन एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये 360 होता है. क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है. कैसे? आप कोई भी दो वर्टिसेस को मिला लीजिए ना, ये तीनों एंगल का सम 180 और फिर ये तीनों को ऐड कर दीजिएगा तो और 180, तो मिला के 360. ठीक है, तो ये दोनों का सम अगर 180 है तो ऑब्वियसली फिर B और D का 180 होगा. वो तो ठीक. In a quadrilateral, if sum of opposite angle is 180, this quadrilateral must be cyclic. ये जरूर साइक्लिक होगा. साइक्लिक होगा मतलब एक सर्कल पास करेगा A B C D से. This can also be proved. Let us suppose here angle A plus angle C is 180. We have to show then a circle must pass through the point A B C and D. से एक सर्कल पास करेगा, ये आपको प्रूव करना है. हम लोग मान लेते हैं कि A B C D से एक सर्कल नहीं पास करता है, D से नहीं पास करके एक दूसरा पॉइंट P से पास करता है. लेट अस सपोज एंगल A प्लस एंगल C इज 180, बट देयर इज ए सर्कल व्हिच डज नॉट पास थ्रू A B C D, passes थ्रू एन अनदर पॉइंट P. ऐसा सपोज किए. अगर ऐसा है, P पॉइंट से पास करता है, ठीक है, तो ये जैसे A B C D साइक्लिक है तो A प्लस C 180 है, तो B प्लस D भी 180 होगा, ये तो होना है. अच्छा, तो हम लोग को शो करना था कि चारों पॉइंट से एक सर्कल पास करेगा. लेट अस सपोज सर्कल पासेस थ्रू ए पॉइंट P इंटरसेक्टिंग AD. देन व्हाट विल हैपन इफ यू ज्वाइन दिस, इसको अगर आप मिला देते हैं, सो B प्लस P ये तब 180 होगा. अगर P पॉइंट से पास करता है तो फिर A B C D साइक्लिक हुआ ना, सॉरी A B C P साइक्लिक हुआ ना, और साइक्लिक में फिर ऑपोजिट एंगल का सम 180 होगा. ये तो हम लोग प्रूफ देख चुके हैं. तो फिर ये B प्लस P 180 हो जाएगा. हमारा A प्लस D 180 था, लेकिन अगर सर्कल A B C और D से नहीं पास करके कहीं इंटरसेक्ट करता है P पर, तो B प्लस P 180 होगा. फिर अगर ऐसा हुआ तो फिर एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू होगा एंगल B प्लस एंगल P, ये हो जाएगा फिर. और ये होने से आपको मिलेगा एंगल D इक्वल टू एंगल P. तो फिर ये P एंगल और ये D एंगल बराबर हो जाएगा. क्या ये P एंगल और D एंगल बराबर होना पॉसिबल है? जरा देख के बताइए. इज इट पॉसिबल दैट
angle P and angle D equal? Here in this triangle PCD, ऐसा कोई ट्रायंगल है ऐसा, मान लीजिए ऐसा PCD, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल. एंड दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. ये एंगल ये दोनों के सम के बराबर होगा. ये कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो ये दोनों को ऐड करेंगे तब उसके बराबर होगा. ठीक है. दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस. दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दिस पॉइंट कोइंसाइड विद दिस. ये दोनों एंगल तभी पॉसिबल होगा जब ये पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा, P पॉइंट यहां आ जाएगा, तभी ये पॉसिबल है. एंगल D इक्वल टू एंगल P इज पॉसिबल ओनली व्हेन D पॉइंट कोइंसाइड विथ P. D P के साथ कोइंसाइड कर जाना चाहिए. मतलब सर्कल ABCD से ही पास करेगा. हम लोग बोलेंगे कि नहीं D से नहीं पास करके कोई दूसरा पॉइंट से पास करता है, तो फिर आपका फॉल्स रिजल्ट आएगा. ये रिजल्ट तभी पॉसिबल है जब ये D पॉइंट और P पॉइंट एक साथ मिल जाए. एंड हेंस इफ सम ऑफ ऑपोजिट एंगल is 180, then a circle must pass through the vertices of the quadrilateral. इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट एंगल का सम 180 है, तो एक सर्कल उस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिक्स से होकर ही पास करेगा. So in this way we can say in a cyclic quadrilateral sum of opposite angle is 180. Also its converse is also true. If in any quadrilateral sum of opposite angle 180, then a circle must pass through the vertices of the quadrilateral. Okay. Now let us see few more problem sums related to दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. कोई भी क्वाड्रिलेटरल का आमने सामने का एंगल का सम 180 है तो साइक्लिक होगा. अच्छा, इफ देयर इज अ क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल, कैसा भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, ठीक है. ये एंगल का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर समझते हैं ना, इस एंगल का बाइसेक्टर, ये दोनों एंगल बराबर है. ठीक है. इसका बाइसेक्टर, ठीक है. एक मिनट थोड़ा सा ठीक से इसको बनाते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, है ना. इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर ऐसे मीट करेगा कहीं. ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है. दिस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, दिस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C. सपोज मीट एट पॉइंट P. ओके. Now take bisector of angle A. ये दोनों एंगल बराबर है. This is bisector of angle A. And take bisector of angle D. ये दोनों एंगल बराबर है. Suppose this point is Q. Meet at a point Q. This point is suppose R S. Okay. PRQS will be a cyclic quadrilateral. ये जो अंदर में क्वाड्रिलेटरल बना है ना, ये हमेशा साइक्लिक होगा, माने इसके वर्टिसेस से होकर के एक सर्कल पास करेगा. किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, कोई क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, ये एंगल बाइसेक्टर्स जो होंगे ना, ये इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, ये चारों बाइसेक्टर मिलके एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएगा. बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. This is what is your question.
question will come, prove that bisectors of the angle of a quadrilateral form a cyclic quadrilateral. Means you have to prove PRQS is a cyclic, and in order to prove PQRS cyclic, कोई भी दो एंगल P एंगल Q का सम 180 दिखा देंगे, या तो फिर एंगल R एंगल S का सम 180 दिखा देंगे, तो ये साइक्लिक हो जाएगा. लेट अस प्रूव PRQS is cyclic. See, angle P in this figure, angle P can be written as 180 minus this plus this. It can be written as 180 minus this plus this. What is this? Half of B, और ये होगा half of angle C. Can you write? Angle P can be written as 180 minus this plus this. This is half of B, this is half of C, because these are bisectors. What is angle Q? This can be written as 180 minus half of A plus half of D. Half of angle A plus half of angle D. I think easily you can understand. Add, दोनों को ऐड कीजिए तो ऐड करने से आपको मिलेगा एंगल P प्लस एंगल Q. दिस साइड ऑल्सो ऐड 180 180 360 minus half common here also, so half common. Within bracket what will come? Angle A plus angle B plus angle C plus angle D. This will come inside the bracket. तो ये हो जाएगा आपका 360 minus half. What is this? A plus B plus C plus D. क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है. 360. So it is 360 minus half 360 means 180. So it will come finally 180. So in this way we can get angle P plus angle Q is 180. And if angle P plus angle Q is 180, then PRQS is a cyclic. So in this way we can prove that bisector of the angles of a quadrilateral always form a cyclic quadrilateral. Okay, understood? This is half 360. Half 360 means 180. So 360 minus 180 is 180. I hope you have understood the sum. Now there is a very important question. Try to understand this. There is a circle, okay, of center. Let us take O. If you draw a chord through O, let us suppose AB is called its diameter. OA and OB are its radius. Okay. Now let us take a chord CD. Let us take a chord CD. CD is a chord which is equal to radius of the circle. ये chord CD ऐसा है कि ये सर्कल के रेडियस के बराबर है. Means CD is equal to OA and OB. एक chord है CD जिसका लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर है. Okay. Now if you join CA DB and if you produce it, ऐसा अगर इसको बढ़ा देंगे ऐसे, this angle will be 60 डिग्री. ये एंगल आपका 60 डिग्री का होगा. समझ गए बात? तो ये आपको प्रूफ करना है. There is a circle of center O, diameter AB. CD is a chord whose length is equal to the radius of this circle. Now if you produce CA and BD meet at a point E, then prove that angle E is 60 degree. In this way question will
कम। देखिए तो एंगल ई 60 डिग्री कैसे हो, या क्वेश्चन विल बी फाइंड एंगल ए, ऐसा रहेगा क्वेश्चन कि एंगल ई का वैल्यू निकालिए आप, वो 60 डिग्री आना चाहिए। देखिए तो कैसे आएगा 60, is a very important question. See, you join in this way, CO and DO. Okay. What is this? CO, radius of the circle. DO is also radius of the circle. And CD is equal to radius of the circle. So CD, CO and DO, all the three are equal, and hence this is an equilateral triangle. And as we know, in equilateral triangle all the angles are equal and are equal to 60 degree. इतना बात आपको समझ में आया? ठीक है, ओके। नाउ यू ज्वाइन CB, ये जो C है ना, इसको आप B से मिला दीजिए। ओके, ऐसा हम लोग पढ़े हैं इन द प्रीवियस वीडियो। सपोज दिस इज सेंटर, ये डायमीटर। इफ यू टेक एनी पॉइंट ऑन द हाफ सर्कल, हाफ सर्कल या सेमी सर्कल बोल लीजिए, उधर या इधर, तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है, because this angle is half of this. This is 180, so this is 90. Or we say angle at semicircle. Semicircle पर जो एंगल होता है 180 का, सॉरी 90 डिग्री का होता है। ओके, देखिए तो जरा ध्यान से, ये डायमीटर है ना, ये C पॉइंट है, ये ऐसे मिलाया हुआ है, ये ऐसे है, तो ये एंगल इतना, ये वाला, ये क्या है? एंगल ऑन द हाफ सर्कल है। ये ACB मस्ट बी 90 डिग्री, एंड इफ दिस इज 90 इधर से, इधर से ECB विल ऑल्सो बी 90, ये 90 हो जाएगा आपका। ठीक से देखिए, ये वाला इधर से ये 90, तो इधर से ये भी 90 हो, क्योंकि ये तो पूरा लाइन है ना। ओके, अच्छा, एंड this is 90, so $60-90 was 60. जरा देखिए, ये बहुत ही खास है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हम लोग। एक रिजल्ट है, ये सेंटर O है। इफ यू टेक एनी आर्क, कोई भी आर्क या कॉर्ड ले लीजिए, this is the angle subtended by the arc at the center. This angle will be always double the angle subtended by the same arc at any point on the remaining part of the circle. ये एंगल इसका हाफ होगा, माने ये डबल होगा, ये उसका आधा होगा। ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, ये हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, अब यहां बड़ा ध्यान से आप देखिए, तब आपको पता चलेगा। ये ऐसे है, आपका ऐसे CD है, यहां सेंटर है इसका O, ऐसे डायमीटर है, ये भी है ना सा फिगर में। नाउ यू सी व्हाट इज दिस, ये एंगल क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय दिस chord CD at the center.
This is the angle subtended by this chord AB, or you can say arc CD at the center. Okay, and if you join CB and DB, what is this? This is angle subtended by the same arc at any point on the remaining part of the circle. ये आर्क CD या कॉर्ड CD का सेंटर पर एंगल है, और ये आर्क CD का इसको छोड़ के सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पर बनाया गया एंगल है. सो दिस एंगल विल बी हाफ ऑफ दिस. इसका हाफ होगा, ये 60 है ना, तो ये होगा आपका 30. दिस यू हैव टू सी हियर. जरा ध्यान से देखिए, ये कॉर्ड CD है ना, इसका ये एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल ये, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड एट एनी पॉइंट, एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल. तो ये एंगल आपका 30 डिग्री का होगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. दिस इज 90. अब ये ट्रायंगल देखिए, ECB, ये पूरा ट्रायंगल BCE, ये 90, ये 30, तो ये क्या होगा 60. तीनों का सम 180 होना है ना. ये 60 30 90 हो गया, 60 30, सॉरी ये 90 है ना, ये 90 बोल रहे हैं, 90 30 120, तो ये होगा 60, तीनों मिला के 180. तो इन दिस वे वी कैन फाइंड दिस एंगल E इज 60 डिग्री. ओके, समझ गए? तो ये एंगल 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये 60 का होगा. So in this way we can solve this problem. Now few more results are there, so we want to complete this video. Okay, let us keep in this video this much. Few more important problems are there and important results also we solve in the next video in part 4. Okay, so in this video keep this much. Thank you for watching.